हिमाचल प्रदेश की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने गुरुदेव नगर में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट बिक्रम सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि कर्जे में दबा पंजाब फिर से तरक्की की राह पर आएगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसे मुहाने पर आखड़ा हुआ है जहां उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सही सरकार को चुनना पड़ेगा और इसका विकल्प सिर्फ भाजपा है। इस मौके पश्चिम क्षेत्र से युवा कांग्रेस के कई सदस्य सुखविंदर बिंद्रा के नेतृत्व में कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा में शामिल हुए। सुखविंदर बिंद्रा ने कहा कि आज पंजाब में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेसी सिर्फ कुर्सियों के लिए आपस में उलझे हुए हैं, जिस कारण वर्कर अब कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्रियों ने पंजाब का विकास नहीं केवल विनाश किया है। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਣਗਿਣਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਔਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਕਸ਼ੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਥ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ। ਜਦ ਯੂਥ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਦਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੌਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ कि दिस इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पंजाब में दिखने को मिलता है और हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के साथ पिछले कल स्मृति ईरानी जी भी यहाँ आए और हमारा मेन फोकस इस सीट के ऊपर जो है, हमारे एडवोकेट साहब जो हैं
इनके साथ जो है विक्रम सिंह सिद्धू जी ने जिस तरीके से मिलकर भारतीय जनता पार्टी का थामन साहब के काम किया, और आज मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे नए यूथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, और जो इस बात को दर्शाता है कि सिद्धू जी की जो जीत है वो सुनिश्चित होती दिख रही है मेरे को। और लगातार जितने दिन अभी बाकी बचे, ये सारे बच्चे जो यूथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ये अपना काम करेंगे, प्रभाव करेंगे, इनका सहयोग हमें मिल रहा है, और ये पूरे तरीके के साथ एडवोकेट सिद्धू जी को जिताने के लिए प्रयत्न करें, और मेरी शुभकामनाएं हैं, और निश्चित रूप से ये सीट जीती जाएगी। जी, कांग्रेस के जो सीएम चेहरा हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो आजकल काफ़ी लोगों के बीच जा रहे हैं और जगह जगह ढाबे पर खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीबों का सीएम हूँ। देखिए, गरीब तो हर कोई कहना शुरू कर देता है अपने आप को। इस ओहदे पे जाके गरीब कोई रहता नहीं है। हमदर्द गरीब के हो सकते हैं, उसमें एडवोकेट सिद्धू जी जैसे लोग भी होते हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेन तो अपना कर्म पे डिपेंड करता है। वो नए नए सीएम बने, वो कुछ भी कह सकते हैं, कहना ही है इस समय तो कहने वाली बातें हैं। अब चुनाव है, चुनाव में तो कौन सही उतरता है, और मुझे लगता है केंद्र स्तर के ऊपर जो नीतियाँ नरेंद्र मोदी जी ने हर प्रदेश में दी हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वल योजना हो, ये अनेकों चीज़ें ऐसे हैं, पेंशन से लेके हर चीज़, और देश को जो रोड मैप उन्होंने इस बजट में दिया है, और उसमें होम स्टे का कंसेप्ट, बॉर्डर सिक्योर करने की बात, देश को बचाने की बात, और देश के साथ साथ हर प्रदेश का जहाँ ध्यान रखते हैं। पंजाब जिस तरह से हमारे यूथ ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह से एक नशे की भट्टी में भी आजकल हम जा रहे हैं, और जिसका नुकसान जो है वो पंजाब ही नहीं और भी पूरे देश में प्रभाव कर रहा है। हम इन सब चीज़ों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी सही रूप से सशक्त होकर इन चीज़ों में काबू करने के लिए आगे बढ़ेगी। जी, आखिरी सवाल है, पंजाब में और ख़ासकर लुधियाना में एक होर्डिंग लगाए जा रहे हैं साबका मंत्री जी की तरफ से कि जो पुल बनाए जा रहे हैं, जो पार्क बनाए जा रहे हैं, वो पंजाब सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार का ये पैसा है या पंजाब सरकार अपने तौर से? देखिए, जितने बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये केंद्र का पैसा होता है। जो स्टेट की छोटी सड़कें होती हैं, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें 10% योगदान स्टेट्स का रहता है, बाकी केंद्र का होता है उसमें। लेकिन जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट है, हर दुनिया जानती है कि स्टेट का नहीं हो सकता, ये सेंटर ही फंड देता है। ये नरेंद्र मोदी गडकरी जी की बात है। और कल ही मैंने एक फर्नीचर मार्केट में बैठी थी कुछ लोगों के बीच में, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बोला कि हमने जो है सिद्धू जी को कहा, विक्रम सिंह सिद्धू जी को, कि यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े जहाँ पे पिलर्स हैं उनको कैसे, और वॉल की बात की उन्होंने। उसी समय गडकरी जी से बात करके उनकी बात को सही तरीके से जैसे लोग चाहते हैं वह किए, और पूरी की पूरी मार्केट जो है, फर्नीचर मार्केट भी जो है विक्रम जी का साथ पूरी तरीके से दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तो पैसा ही केंद्र का है। इसमें अगर कोई कहे कि ये पंजाब का पैसा है, जब मैं कह दूँ हिमाचल का पैसा है, तो लगेगा हम इतने इग्नोर है। मतलब बेफालतू की वाहवाही लूट रहे हैं। बेफालतू वाहवाही तो लूट ही नहीं सकते भाई साहब। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप मेरे से ज़्यादा, आपको भी इस बात का इल्म है, और कि इस तरह की जब चुनाव आते हैं तो कई कुछ कह सकते हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी किस तरीके के साथ हर स्टेट को सींच रहे हैं।